السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز HD۔ میں ہوں آپ کے ساتھ فائق محمود اور میں ہوں ماہم عباس۔ آغاز اس خبر کے ساتھ کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ اگر الیکشن سے پہلے رزلٹ طے کرنا ہے تو پھر ایسے الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں، ہم صرف عوام کا ہی فیصلہ مانیں گے۔ ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ جو کہتا تھا ہر کسی کو جیل بھیجوں گا وہ آج خود جیل میں ہے، لیکن شاید جیل میں ہی کوئی سبق سیکھ لے۔ ایک جیل میں ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ بات ہو گئی ہے، 2/3 اکثریت ہماری ہوگی، الیکشن کے بعد ہم وہ اونٹ ہوں گے، جہاں یہ اونٹ بیٹھے گا وہاں حکومت ہوگی۔ وہ نوشہرہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ ہمارا امید ہے کہ چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو یا چاہے وہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہو، وہ انشور کریں گے کہ جب 8 فروری پہ الیکشن ہو تو کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، کوئی شکایت نہ کر سکے۔ اگر کوئی شکایت کر سکتا ہے، الزام لگا سکتا ہے، تو پھر الیکشنز ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ جو ہر کسی کو جیل بھیجنے کا شوق رکھتا تھا نا، یاد ہے اس کو، کہتا تھا اس کو بھی جیل بھیجوں گا، اس کو بھی جیل بھیجوں گا، اس کو بھی، وہ اب بیچارہ وہ خود جیل میں ہے۔ اب شاید وہ کوئی سبق سیکھے گا۔ ایک تو وہ جیل والے ہیں، تو دوسرے کہتے ہیں کہ ہم 2/3 اکثریت، بات تو ہو گئی، اور 2/3 اکثریت ہمارا۔ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشنز میں یا الیکشن کے بعد ہم وہ اونٹ ہوں گے کہ جہاں بھی یہ اونٹ بیٹھے گا وہاں حکومت ہوگا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی صدارت میں سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں وقفہ۔ جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف شکایت متفقہ طور پر خارج کر دی گئی۔ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شکایت کا جائزہ وقفے کے بعد لیا جائے گا۔ مزید تفصیلات جانیں گے عدالتی کارروائی بارے حسیب ملک سے۔ حسیب ملک، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں، یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہے جو کہ وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر جس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اجلاس میں جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف جو ہے شکایات پر معاملہ جو تھا وہ زیر بحث آیا ہے، اور جو اجلاس تھا اس کے اندر جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف جو شکایات تھیں وہ متفقہ طور پر خارج کر دی گئی ہیں۔ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شکایات کا بھی اب جائزہ لیا جا رہا ہے، جبکہ جو جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف جو شکایت کنندہ تھیں آمنہ ملک، وہ صحیح۔ حسیب ملک ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ لاہور ڈیفنس کار حادثے میں 6 افراد کی ہلاکت کا معاملہ۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے ملزم افنان کے والد شفقت کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ عدالت نے ملزم کے والد شفقت کی عبوری ضمانت 27 نومبر تک ملتوی منظور کر لی۔ عدالت نے ملزم افنان کے والد کو گاڑی کا مالک ہونے پر مقدمے میں نامزد کیا۔ لاہور ڈیفنس کار حادثے میں 6 افراد کی ہلاکت کا یہ معاملہ ہے۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے ملزم افنان کے والد شفقت کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ عدالت نے ملزم کے والد شفقت کی عبوری ضمانت 27 نومبر تک منظور کر لی ہے۔ عدالت نے ملزم افنان کے والد کو گاڑی کا مالک ہونے پر مقدمے میں نامزد کیا۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے آصف علی زرداری اور نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ گاڑیوں کے ریفرنس کی سابق وزیر اعظم نواز شریف کو 30 نومبر کو اپنے دفاع کا بیان قلم بند کرانے کا حکم اور اشتہارات کیس میں یوسف رضا گیلانی کو 11 جنوری کو طلب کر لیا۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ توشہ خانہ کیس سے گاڑیاں لینے کا کیس، نواز شریف کو دفاع میں بیان ریکارڈ کرنے کی اجازت، سماعت 30 نومبر تک ملتوی۔ اشتہارات کیس میں یوسف رضا گیلانی 11 جنوری کو طلب۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے توشہ خانہ گاڑیوں سے متعلق نیب ریفرنس کی سماعت کی۔ آصف علی زرداری، خواجہ عبدالغنی مجید، انور مجید اور یوسف رضا گیلانی کے پلیڈر عدالت پیش ہوئے۔ وکیل صفائی قاضی مصباح نے موقف اختیار کیا کہ ایک دفاع کا بیان رہتا ہے، نواز شریف کی غیر حاضری میں ریفرنس فائل ہوا تھا، ہمیں سوال نامہ دے دیں، ہم جواب دے دیتے ہیں۔ نیب پروسیکیوٹر سہیل عارف نے کہا کہ درخواست پڑھنے کا وقت دیا جائے۔ جج نے نواز شریف کا بیان ریکارڈ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی، جبکہ اشتہارات کی غیر منصفانہ تقسیم سے متعلق ریفرنس میں یوسف رضا گیلانی اور دیگر ملزمان کی طلبی کا نوٹس جاری کر دیا گیا۔
साइफर केस के जेल में ट्रायल से मुतालिक काबीना के फैसले का इतलाक माजी कार्रवाई पर होने या ना होने से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा से दलाइल तलब कर लिए हैं। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से वजारत कानून का नोटिफिकेशन और चेयरमैन पीटीआई को लाहक सिक्योरिटी खदशात की स्पेशल रिपोर्ट भी पेश करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रोकने के हुक्म में 1 रोज की तौसीह कर दी है। साइफर केस में जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रोकने के हुक्म में तोसी। चेयरमैन पीटीआई के वकील की काबीना से जेल समाअत की मंजूरी से कबल की कार्रवाई कलअदम करार देने की इस्तदा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने अपील के काबिल समाअत होने पर दलाइल दिए। मौकिफ अपनाया कि चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल बज़ाहिर एक हिकमत अमली का हिस्सा है। इस हिकमत अमली का मकसद चेयरमैन पीटीआई को अवाम से अलग करना है। 29 अगस्त का वजारत कानून का नोटिफिकेशन ट्रायल कोर्ट के जज की तरफ से किसी सिफारिश के बगैर जारी किया गया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने जेल ट्रायल के खिलाफ हमारी दरखास्त पर फैसला 1 माह की ताखीर से जारी किया। दरखास्त जमानत ऐसी दस्तावेजात की बुनियाद पर मुस्तरद की गई जो हमें दिखाई तक नहीं गयी। फर्द जुर्म की कार्रवाई से पहले हमें कानून के मुताबिक दस्तावेजात फराहम करके 7 रोज का वक्त भी नहीं दिया गया। अदालती फैसले मौजूद हैं। काबीना की मंजूरी के बाद जारी होने वाले नोटिफिकेशन का इतलाक माजी से नहीं होता। अटॉर्नी जनरल ने मौकिफ अपनाया कि 29 अगस्त का नोटिफिकेशन इंतजामी एक्शन था। 29 अगस्त के वजारत कानून के नोटिफिकेशन को बाद के नोटिफिकेशन से अलग करके देखा जाए। ट्रायल कोर्ट के जज ने ऐसा कोई हुक्म जारी नहीं किया कि अवाम को समाअत से रोका जाए। साइफर केस में जेल ट्रायल को ओपन ट्रायल समझा जाए। इसराइली टैंकों ने गजा में इंडोनेशिया के अस्पताल को घेरे में ले लिया है। सुबह से जारी इसराइल के बराह रास्त हमलों में कम अज कम 12 अफराद शहीद हो चुके हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इंडोनेशिया के वजीर खारजा की अस्पताल पर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। ये हमला बैनुल अक़वामी इंसानी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। तमाम ममालिक अपने तमाम असर रसूख इस्तेमाल करते हुए इसराइल पर मुजालिम बंद करने पर जोर दें, वजीर खारजा इंडोनेशिया की जानिब से कहा गया। निगरान वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी का कहना है कि मसले फ़लस्तीन और कश्मीर उम्मत मुस्लिमा के मसाइल हैं। अहले फ़लस्तीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। उनकी जानिब से मज़ीद क्या कहा गया, आप भी देखिए। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन ये उम्मत मुस्लिमा के मसाइल हैं। हम अहले फ़लस्तीन के साथ हैं और किसी भी सूरत अहले फ़लस्तीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। अभी 3 रोज पहले पाकिस्तान के तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और मशाइख जो हैं उन्होंने मोहतरम मकाम जनाब सिपा सलार से मुलाकात की। उस मुलाकात में बितफसील फ़लस्तीन के मसले के ऊपर बात हुई। पाकिस्तान की फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले पर बहुत वाज़ेह पॉलिसी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि गजा मार्च में अहले लाहौर ने भरपूर शिरकत की। इसराइल मासूम बच्चों को निशाना बना रहा है। मुस्लिम हुक्मरान सानेहा गजा पर खामोश और मुनाफकत कर रहे हैं। दुनिया मरीख पर जा रही है और हम तालीम और साफ पानी से महरूम हैं। कल हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने गैरती ईमानी का मुजाहिरा किया। कल अहमदाबाद हिंदुस्तान में भी ऑस्ट्रेलियन शहरी जो गैर मुस्लिम था फ्री फ़लस्तीन शर्ट पहने हुए ग्राउंड में हाजिर हो गए। मैं समझता हूँ कि यह अकेला मिस्टर जान हमारे उस बेजान हुक्मरानों से बेहतर है जो इस बड़े सानहे पर खामोश हैं और मुनाफिकत का किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान में करोड़ों बच्चे ग़ज़ाई क़िल्लत के शिकार हैं। दुनिया मरीख की तरफ जा रही है और हम यहाँ तालीम से महरूम हैं, तालीम के रोशनी से महरूम हैं, साफ पानी से महरूम हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई का कहना है कि अगर दहशतगर्दी ना रुकी तो इनके ठिकानों में घुस कर मारेंगे। पाकिस्तान के साथ डबल गेम करना अफसोसनाक है। कलअदम TTP को जदीद असलहे की फराहमी तशवीशनाक है। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को हर सूरत वापस जाना होगा। मुल्की मफाद में जो भी फैसला होगा वो हम करेंगे। जान अचकज़ई कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये एक फैक्ट ऑफ लाइफ है कि TTP को असलहा प्रोवाइड किया गया है
तालिबान के लो लेवल के कमांडर्स उनके साथ हैं। इसी तरह ख़ुद अमेरिका के कांग्रेस ने भी ये कहा है कि अफ़गान तालिबान ने जो असलहा है वो अपने फ्रेंचाइज टीटीपी को जो है वो हवाले किया है, लेकिन डबल गेम पाकिस्तान से के साथ करना इस हवाले से ये अफसोसनाक है। ना हमने इलेक्शन में जाना है, ना हमने लोगों से वोट लेना है, लिहाजा एक ही क्राइटेरिया है कि मुल्क के मफाद में जो भी फैसला होगा वो हम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गैर मुल्की शहरियों की वतन वापसी के खिलाफ केस खुली अदालत में लगाने का हुक्म दे दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए गए। फरतुल्लाह बाबर समेत दीगर ने गैर मुल्कियों की वतन वापसी रोकने के हवाले से दरख्वास्त दायर की है। ये रिपोर्ट देखिए। गैर मुल्की शहरियों की वतन वापसी रोकने के लिए दायर इन चैम्बर अपील पर समाअत। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात मुस्तरद। अफगान शहरियों की वतन वापसी के खिलाफ केस खुली अदालत में लगाने का हुक्म। फरतुल्लाह बाबर समेत दीगर ने गैर मुल्कियों की वतन वापसी रोकने के हवाले से दरख्वास्त दायर की थी। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इन चैम्बर अपील पर समाअत की। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त एतराज़ात लगाकर वापस दी थी। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ चैम्बर अपील दायर की गई थी। फ़िज़ाई आलूदगी के सेहत पर मुज़र असरात कम करने के लिए लाहौर और गुजरांवाला डिवीज़न में फेस मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया। लाहौर में अवाम इस फैसले को फ़िज़ाई आलूदगी की नज़र करते नजर आ रहे हैं। अक्सरियत बगैर मास्क के मामूलात ज़िंदगी में मसरूफ़ है। ये रिपोर्ट देखिए। फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में लाहौर दुनिया में दूसरे नंबर पर मौजूद है। शहर में स्मोक की औसत शरह 395 रिकॉर्ड की गई। माल रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 404, जोहर टाउन का 443 तक पहुंच गया। फ़िज़ाई आलूदगी का मुकाबला करने के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया। लाहौर और गुजरांवाला डिवीजन में शहरियों को फेस मास्क पहनने की हिदायत जारी हुई। लाहौर में अक्सर शहरियों ने फेस मास्क पहनने की जहमत ही गवारा न की। शाहराहों, दुकानों पर ज्यादातर अफराद बगैर मास्क के नजर आ रहे हैं। अवाम फेस मास्क की अहमियत को मानते तो हैं, लेकिन रिवायती सुस्ती और गैर जिम्मेदारी आड़े आ रही है। देखें, इस बारे में तो बहुत अच्छा ही है, एक फैसला है, क्योंकि इंसानी सेहत सबसे पहले है। इंसान की सेहत होगी तो इंसान बकाया मामलात में भी बेहतर चल सकता है। अच्छा ही दाम है, ये लागू होना चाहिए हमारे पे, हमारी सेफ्टी है इस चीज़ में। ठीक है, मुझे भी पता चला है रिसेंटली, तो इंशाल्लाह मैं भी अब जाके इसको कवर करूँगा। इंशाल्लाह भी मास्क लगाऊंगा। मास्क पहनने की एक हफ्ते की हुकूमती पाबंदी पर अमल करके अवाम खुद को कई बीमारियों से बचा सकते हैं। स्मोक के बाद जनवरी के आखिर तक हफ्ते के रोज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म जारी कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर को स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बंद करने का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत की गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के तदारुक से मुतालिक दरखास्तों का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। मोहम्मद अशफाक की ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दरखास्तें। जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्तों पर गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। स्मोक के तदारुक के लिए हारून फारूक समेत दीगर ने दरखास्तें दायर की थीं। लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है। अदालत ने तहरीरी हुक्म में कहा है कि स्मोक के बायस जनवरी के आखिर तक हफ्ते के रोज तमाम तालीमी इदारे बंद रखे जाएं। डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर को स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बंद करने को नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत की गई है। पंजाब हुकूमत हफ्ते में 2 रोज वर्क फ्राम होम के हवाले से इक़दाम उठा रही है। पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में जिम बंद करने का लफ्ज मुअत्तल किया जाता है। ये नोटिफिकेशन कोरोना की शिक के तहत किया गया और इसे मजीद लागू नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुतालिक दरखास्तों पर आइंदा समात 22 नवंबर को होगी। और अब कारोबार की दुनिया। इंटर बैंक में डॉलर 286 रुपए से भी नीचे आ गया। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल के 4 माह में आलमी अदायगियों और वसूलियों का फर्क गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 3 अरब डॉलर से कम होकर 1 अरब डॉलर रह गया है। इंटर बैंक में डॉलर 53 पैसे कमी से 285 रुपए 97 पैसे पर बंद हुआ। IMF डील के बाद से रुपए की साख पर मुस्बत असर पड़ा है और गुज़िश्ता 3 सेशंस में डॉलर इंटर बैंक में 2 रुपए 17 पैसे सस्ता हो चुका है। डीलर्स का कहना है कि अगर मुतवक्के बैरूनी सरमायाकारी में ताखीर, दीगर बैरूनी ज़राए से माली ताउन का ना मिलना और कर्जों की रीशेड्यूलिंग में नाकामी हुई तो रुपया अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकता है। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे कमी से 287 रुपए 50 पैसे में दस्तयाब है। इसके अलावा मुआशी सुस्तरवी के बाइस और इम्पोर्ट को लगाम डालने के हुकूमती इक़दामात से रवा खातों के खसारे में कमी रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक के मुताबिक सिर्फ अक्टूबर में जारी खातों का खसारा 7 करोड़ 40 लाख डॉलर तक पहुँच गया, जबकि रवा माली साल जुलाई से अक्टूबर ये 1 अरब डॉलर तक महदूद रहा। आज स्टॉक मार्केट उतार चढ़ाव का शिकार रही। तमाम इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 14 पॉइंट्स इजाफे से 57,077 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट तज्जियाकारों के मुताबिक शेयर बाजार में इन्वेस्टर्स का रुझान प्रॉफिट टेकिंग की तरफ बढ़ रहा है।
کارکردگی صفر، مطالبے کھربوں روپے۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیز نے سسٹم چارجز کی مد میں 3077 ارب روپے مانگ لیے۔ نیپرا کمپنیوں کی درخواست پر سماعت کے بعد فیصلہ جاری کرے گا۔ ایک طرف ناقص کارکردگی کے باعث لوڈ شیڈنگ کا بحران، دوسری جانب بڑھتے ہوئے مطالبے۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے سسٹم چارجز کی مد میں مزید کھربوں روپے مانگ لیے۔ درخواست کے مطابق لیسکو کو سسٹم چارجز کی مد میں مالی سال 2023-24 کے لیے 627 ارب 96 کروڑ روپے درکار ہیں۔ گیپکو نے 358 ارب 49 کروڑ، فیسکو 430 ارب 33 کروڑ اور ہیسکو نے 200 ارب 91 کروڑ روپے کا مطالبہ کیا ہے۔ آئسکو نے 296 ارب روپے اور ملتان ریجن کی تقسیم کار کمپنی نے 577 ارب 57 کروڑ روپے مانگے ہیں۔ پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی نے 390 ارب 64 کروڑ اور کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی نے رواں مالی سال کے لیے 192 ارب 72 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کی ہے، جبکہ ٹرائبل ایریا کی تقسیم کار کمپنی نے 2 ارب روپے کی درخواست کی ہے۔ کمپنیوں کی جانب سے درخواست میں انرجی چارجز، کیپیسٹی چارجز اور ڈسٹریبیوشن مارجن شامل ہے۔ آپریشن اینڈ مینٹیننس کاسٹ اور دیگر اخراجات بھی درخواست میں شامل کیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ضم شدہ قبائلی اضلاع کے بچے اب سرکاری خرچ پر نجی اسکولوں میں تعلیم حاصل کریں گے۔ KG سے جماعت 8 تک طلبہ کی ماہانہ فیس حکومت ادا کرے گی۔ خیبر پختونخوا میں ضم شدہ قبائلی اضلاع کے بچے اب سرکاری خرچ پر نجی اسکولوں میں تعلیم حاصل کریں گے۔ قبائلی علاقوں میں سباؤن اسکول انیشیٹو پروگرام شروع کیا جائے گا۔ محکمہ تعلیم کے مطابق ضم اضلاع میں KG طلبہ کی 1000 جبکہ پہلی سے 5ویں جماعت تک کے طلبہ کی 1500 روپے فیس حکومت ادا کرے گی۔ جماعت 7 سے 2000 روپے ماہانہ فیس حکومت ادا کرے گی۔ رواں سال 7 ضم شدہ اضلاع اور 6 ڈویژن میں پروگرام شروع ہوگا۔ ضلع باجوڑ میں 4، مومند اور خیبر میں 3، اور اورکزئی، کرم اور شمالی وزیرستان میں 2 اسکولوں میں طلبہ داخل ہوں گے۔ حکام کے مطابق نجی اسکول علاقے میں موجود نہ ہونے پر 1 لاکھ روپے تک گرانٹ بھی دی جائے گی۔ پروگرام پر رواں سال 8 کروڑ روپے اخراجات آئیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے ہمیں دیجیے اجازت۔